Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, in English grammar, today we will do worksheet 14. Before starting the work, you all have to mention today's date in your copies, that is 28 August 2020. You all have to mention online classwork in your copies, and with that, you have to mention lesson 17 in your copies. So, as you all know that we are doing lesson 17 and the topic of the lesson is active and passive voice. In yesterday's worksheet, we have discussed over the sentences that were related to simple present tense, simple past tense or simple future tense. We have changed the sentences according to the formulas. Okay, in today's worksheet we will discuss over the sentences that will be related to continuous tense only. Okay, so the first topic is that is present continuous tense. So change these sentences from active to passive voice. Let's see formulas for changing active to passive voice. The first formula is of affirmative, that is subject plus is MR, then being plus third verb plus by plus object plus full stop. Okay, same is there. What is the helping verb of continuous tense? That is MR. हमको केवल उसमें being add कर देना है. Next is negative sentences, that is subject is MR not being plus third verb plus by plus object plus full stop. Next is interrogative, that is MR plus subject plus being. Being will come after the subject. Okay, is MR plus subject plus being plus third verb plus by plus object plus question mark. Next is interrogative plus negative, so that will be question word if question word is there, plus is MR plus subject plus not plus being plus verb third form plus by plus object plus question mark. So these are the formulas that is related to continuous present continuous tense only. If you have to change a sentence from active to passive voice and the sentence is of present continuous tense, so you have to use these formulas only. So let's see the first sentence, that is he is learning English with the help of englishkitab.com. वो englishkitab.com की मदद से इंग्लिश को सीख रहा है. So the conversion of sentence will be, so the answer is English is being learnt by him with the help of englishkitab.com. In the active voice, he is the subject because he is learning English. And what is he learning? He is learning English. So English is the object in the active voice. So in passive voice, English has become the subject. English की according हमने यहाँ is लगाया है. English is being learnt by him with the help of englishkitab.com. Learnt is the third form of verb and he का objective case होता है him. Okay, let's see the next sentence, that is are they opening the gifts now? क्या वो अपने gifts खोल रहे हैं? अभी खोल रहे हैं. So here they is the subject because वे खोल रहे हैं. What are they opening? They are opening the gifts. Gifts is the object. So in passive voice gifts will become the subject and according to gifts हमने यहाँ are लगाया है because gifts जो है that is plural word. Are the gifts being opened by them now? So they का objective case them होता है, that's why हमने यहाँ them लगाया है. They and them. Okay, are the gifts being opened by them? क्या गिफ्ट्स उनके द्वारा खोले जा रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर नॉट कलेक्टिंग द डोनेशंस एट द मोमेंट. हम जो डोनेशंस हैं वो इस समय कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो वी इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. एंड व्हाट आर वी नॉट कलेक्टिंग? वी आर नॉट कलेक्टिंग द डोनेशंस. The donations is the object in the active voice. So in passive voice it became the subject. The donations are not being collected by us at the moment. Donations के according हमने are लगाया है. Not being collected by us, we का objective case होता है us. The donations are not being collected by us at the moment. नेक्स्ट सेंटेंस इज हुज फ्रेंड इज़ नॉट हेल्पिंग यू. किसका दोस्त तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है. सो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इफ हु इज़ गिवन देन द सेंटेंस विल स्टार्ट बाय होम. इफ हुज इज़ गिवन दैट टाइम द सेंटेंस विल स्टार्ट विद बाय हुज. सो बाय हुज फ्रेंड आपका हो गया एंड यू आपका ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में. सो इट विल बिकम द सब्जेक्ट. बाय हुज फ्रेंड आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड. किसके दोस्त के द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की जा रही है. सो अकॉर्डिंग टू यू हमने यहाँ पर आर लगाया है. ओके, नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन आर लाफिंग एट द ओल्ड बैगर. बच्चे जो हैं वो बूढ़े भिखारी के ऊपर हंस रहे हैं. सो चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट बिकॉज दे आर लाफिंग एंड दे आर लाफिंग ऑन द बैगर. दैट्स वाई बैगर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो न्यू सब्जेक्ट विल बी द बैगर ओनली.
द ओल्ड beggar इज बीइंग laughed at by the children. बूढ़ा भिखारी पर जो है बच्चों के द्वारा हंसा जा रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज नॉट वेटिंग फॉर मी. वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा है. ही इज द सब्जेक्ट, ओके, एंड मी इज द ऑब्जेक्ट. ही इज सब्जेक्ट एंड मी इज ऑब्जेक्ट. इंटरचेंज करेंगे. मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है एंड ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है. सो द आंसर इज आई एम नॉट बीइंग वेटेड बाय हिम. ओके, मेरा इंतज़ार उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है. नेक्स्ट आर टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो चेंज दीज सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव टू पासिव वॉइस अकॉर्डिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लेट्स सी. So the first formula is of affirmative sentence. First the heading is written formulas for changing active to passive voice. Active से passive voice में change करने के लिए जो formulas use किए जाते हैं that we will discuss here. First is affirmative sentence. So the helping verb of past continuous tense is was were. What we have to do? We have to add being to it only. हमें इसके साथ केवल being add कर देना है. So let's see. Subject, was were, being, verb third form plus by plus object plus full stop. Next is negative. So not will be there between was were and being. was were और being के बीच में not आ जाएगा आपका. So the formula is subject, was were, not being plus verb third form plus by plus object plus full stop. Next is interrogative. So obviously it will start with the helping word and being will come after the subject only. So the formula is was were plus subject plus being plus verb third form plus by plus object plus question mark. Next is interrogative and negative, which is a mixture of interrogative and negative. So if question word is there, so we will start with the question word, otherwise we will start with the helping verb. So question word plus was were plus subject not being plus third verb plus by plus object plus question marks, question mark only, sorry. So the sentence is माला वॉज टाइपिंग द अर्जेंट लेटर. माला जो है वो एक अर्जेंट लेटर है, उसको टाइप कर रही थी. सो हेयर माला is the subject and urgent letter is the object. So in passive voice the urgent letter will become the subject. So the answer is the urgent letter was being typed by Mala. Mala is a naming word, that's why object में same है. The urgent letter के according हमने was लगाया है and being हमारा जो helping verb है passive voice का, that is was being. The urgent letter was being typed by Mala. So the second sentence is you were not driving him home. तुम उसे घर नहीं छोड़ रहे थे. ड्राइविंग मीन्स ड्राइव करके घर छोड़ना. सो यू इज़ द सब्जेक्ट एंड हिम इज़ द ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू हिम हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा ही, बिकॉज हिम आपका ऑब्जेक्ट था एंड ऑब्जेक्टिव केस हिम दिया हुआ था एंड जिसका सब्जेक्टिव केस ही होता है. अकॉर्डिंग टू ही हमने वॉज लगाया है. ही वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन होम बाय यू. वह तुम्हारे द्वारा घर नहीं छोड़ा जा रहा था. नेक्स्ट सेंटेंस इज वर दे नॉट कैरिंग बैग्स. क्या वे बैग कैरी नहीं कर रहे थे. सो हेयर दे इज़ द सब्जेक्ट एंड वॉट इज़ द ऑब्जेक्ट. वो क्या कैरी नहीं कर रहे थे, दैट इज़ बैग्स. सो न्यू सब्जेक्ट विल बी बैग्स ओनली. सो द आंसर इज वर द बैग्स नॉट बीइंग कैरीड बाय देम. क्या बैग उनके द्वारा कैरी नहीं किए जा रहे थे. सो वर आपका बैग्स की अकॉर्डिंग वर आया है एंड न्यू सब्जेक्ट इज द बैग्स नॉट बीइंग कैरीड बाय देम. दे का ऑब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पर देम लगाया है. नेक्स्ट सेंटेंस इज वाई वर दे चीटिंग यू. वे तुम्हें धोखा क्यों दे रहे थे. सो इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी द आंसर. सो द आंसर इज वाई वर यू बीइंग चीटेड बाय देम. हेयर यू बिकेम द न्यू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू यू हमने यहाँ वर लगाया है. वाई वर यू बीइंग चीटेड बाय देम. दे सब्जेक्ट था, सो उसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है. वाई वर यू बीइंग चीटेड बाय देम. तुम्हें उनके द्वारा धोखा क्यों दिया जा रहा था. नेक्स्ट सेंटेंस इज द मिनिस्टर वॉज नॉट गिविंग द स्पीच टू द ऑडियंस. जो मिनिस्टर थे वो दर्शकों को भाषण नहीं दे रहे थे. सो हेयर द मिनिस्टर इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, द स्पीच टू द ऑडियंस. सो न्यू सब्जेक्ट इज द स्पीच टू द ऑडियंस एंड उसके अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया है. वॉज नॉट बीइंग गिवन बाय द मिनिस्टर. दर्शकों को भाषण, मंत्री के द्वारा दर्शकों को भाषण नहीं दिया जा रहा था. नेक्स्ट सेंटेंस इज द डॉक्टर वॉज काउंसलिंग हर पेशेंट्स. जो डॉक्टर था वो अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग कर रही थी. हर इज़ गिवन, दैट्स वाई लेडी डॉक्टर इज़ गिवन. सो जो डॉक्टर थी वो अपने पेशेंट्स, अपने मरीज़ों की काउंसलिंग कर रही थी. सो डॉक्टर इज़ द सब्जेक्ट एंड
her patience is the object, so new subject is her patience. Patience is plural word, that's why हमने वर लगाया है. her patients were being counseled by the doctor. उसके जो मरीज़ थे वो डॉक्टर के द्वारा काउंसल किए जा रहे थे. काउंसल मीन्स होता है विचार विमर्श करना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना और उनका सोल्यूशन करना. Next we will discuss over the exercises of the lesson 17. So let's see the exercise A. First exercise is fill in the blanks with the correct passive forms. हमको क्या करना है, करेक्ट पासिव फॉर्म्स के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है. सो फर्स्ट अ नॉर्मल सेंटेंस इज गिवन in active voice. We have to read the sentence and according to it we have to convert the sentence to passive voice. The whole sentence is being written here, but verb is not written, which we have to fill. Okay, so the first sentence is the fumes of the factory are polluting the air in this area. जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है वो इस एरिया की हवा को दूषित कर रहा है. सो हेयर द फ्यूम्स ऑफ द फैक्ट्री इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज द एयर इन दिस एरिया. क्या पॉल्यूट हो रही है, एयर पॉल्यूट हो रही है. सो न्यू सब्जेक्ट विल बी द एयर इन दिस एरिया इज. हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, दैट्स वाई हमने इज एम आर लगाना है. अकॉर्डिंग टू एरिया हमने इज लगाया है. इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय द फ्यूम्स ऑफ द फैक्ट्री. इस एरिया की हवा जो है वो फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के द्वारा दूषित हो रही है. नेक्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस इज हर पेंटिंग्स कन्वेड अ ब्यूटिफुल मैसेज. उसकी पेंटिंग्स ने एक सुंदर सा मैसेज कन्वे किया. द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस बिकॉज कन्वेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है. द सब्जेक्ट इज हर पेंटिंग्स एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज अ ब्यूटिफुल मैसेज बिकॉज क्या कन्वे किया, एक ब्यूटिफुल मैसेज कन्वे किया. सो आवर न्यू सब्जेक्ट विल बी अ ब्यूटिफुल मैसेज. So the answer is a beautiful message was conveyed by her paintings. Because हमारा simple past tense था उसमें हम was were लगाते हैं. So a beautiful message is new subject and according to beautiful message हमने was लगाया है. A beautiful message was conveyed by her paintings. By her paintings उसकी एक सुंदर सा मैसेज जो है वो उसकी पेंटिंग्स के द्वारा कन्वे किया गया. Let's see the next sentence. The next sentence is the hospital looks after its patients well. So जो हॉस्पिटल है वो अपने पेशेंट्स की देखभाल बहुत अच्छे से करता है. ओके, सो हेयर द हॉस्पिटल इज़ द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज़ द पेशेंट्स. सो न्यू सब्जेक्ट विल बी द पेशेंट्स ओनली एंड द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हमने इसको इज एम आर लगाना है हेल्पिंग वर्ब में. द पेशेंट्स आर लुक्ड आफ्टर वेल बाय द हॉस्पिटल. जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल हॉस्पिटल के द्वारा अच्छे से की जाती है. सो मेरी मम्मी का चैरिटेबल वर्क जो है, जो उनका चैरिटी वाला वर्क है, उसने मुझे क्या सिखाया. द वैल्यू ऑफ कंपैशन मीन्स दया की जो कीमत होती है वो सिखाई है. सो हेयर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकॉज हैज़ टॉट लिखा है, सिखाया है. सो हमारा जो वर्ब रहेगा दैट विल चेंज इनटू हैज़ बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट. हेयर माई मदर्स चैरिटेबल वर्क इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. मी, बिकॉज क्या सिखाया, मुझे सिखाया, हैज़ टॉट मी. सो न्यू सब्जेक्ट विल बी आई ओनली. अकॉर्डिंग टू आई हमने हैव बीन लगाया है. आई हैव बीन टॉट द वैल्यू ऑफ कंपैशन बाय माई मदर्स चैरिटेबल वर्क. ओके, आई आपका न्यू सब्जेक्ट हो गया एंड माई मदर्स चैरिटेबल वर्क जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया. आई हैव बीन टॉट द वैल्यू ऑफ कंपैशन बाय माई मदर्स चैरिटेबल वर्क. मुझे सीखने को मिली किसकी, दया की वैल्यू मेरी मम्मी के चैरिटेबल वर्क के द्वारा. नेक्स्ट सेंटेंस इज द डिटेक्टिव्स डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ द मर्डर हिस्ट्री. जो डिटेक्टिव्स हैं, जो जासूस हैं, वो नहीं जानते हैं जो भी मर्डर मिस्ट्री, जो मर्डर का रहस्य है उसको नहीं जानते हैं. सो हेयर द डिटेक्टिव्स इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज द डिटेल्स ऑफ द मर्डर मिस्ट्री. सो हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा द डिटेल्स ऑफ द मर्डर मिस्ट्री. और हमारा जो सेंटेंस है दैट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज डू नॉट डज नॉट आता है. सो हम क्या करेंगे, इज आर एम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट. सो न्यू सब्जेक्ट इज द डिटेल्स ऑफ द मर्डर मिस्ट्री. डिटेल्स आपका प्लूरल होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर आर लगाया है. द डिटेल्स ऑफ द मर्डर मिस्ट्री आर नॉट नोन बाय द डिटेक्टिव्स.
Now let's move forward to exercise B, and the heading of exercise B is identify the sentences as active or passive voice and convert active to passive and passive to active voice. First we have to identify whether the sentence is active voice or whether the sentence is passive voice. If the sentence is active voice, then we have to convert it into passive voice, and if the sentence is passive voice, then we have to convert it into active voice. So let's see the first sentence. The first sentence is the books are written by Mr. Sen. So one thing that we have to remember whenever we have to recognize that the sentence is active or passive, so we have to see by. If by is given, that means हमारा जो sentence है वो passive voice है. This is the easiest way to recognize that the sentence is active or passive. सो इट इज़ पासिव वॉइस ओनली. द बुक्स आर रिटन बाय मिस्टर सेन. जो किताबें हैं वो मिस्टर सेन के द्वारा लिखी जाती हैं. सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस. हेयर द सब्जेक्ट इज़ द बुक्स, तो हमें बुक्स को ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड द ऑब्जेक्ट इज़ मिस्टर सेन, तो मिस्टर सेन आपका ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बन जाएगा. सो द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम क्या करेंगे, राइट्स लगा देंगे, बिकॉज आर रिटन लिखा है, दैट इज़ द passive form of simple present tense only. So Mr. Sen writes the books. Let's see the next sentence. The second sentence is I have borrowed 5 books from the library. मैंने लाइब्रेरी से 5 बुक्स जो हैं वो बोरो की, कर चुका हूँ. Have borrowed because it is a present perfect tense, and it is active voice only because no by is given and I is the subject and the subject is doing the action only. मैं borrow कर चुका हूँ 5 किताबें लाइब्रेरी से. So we have to change into passive voice. First of all, let's see that the sentence is in present perfect tense. So have आपका किस में change हो जाएगा, have been or has been according to the new subject. I is the subject and what is the object? The object is 5 books from the library. What I have borrowed? I have borrowed 5 books from the library. So new subject is 5 books from the library, and the books is a plural, that's why हम यहाँ have been लगा रहे हैं. 5 books from the library have been borrowed by me. I का ऑब्जेक्टिव केस me होता है. 5 किताबें लाइब्रेरी से मेरे द्वारा उधार ली जा चुकी हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज द टेक्नीशियन विल क्लीन द लेबोरेटरी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स आर ओवर. जो टेक्नीशियंस हैं वो लेबोरेटरी को, प्रयोगशाला को साफ कर देंगे जब उनके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे. सो हेयर द सेंटेंस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस बिकॉज ओनली विल दिया है, and the sentence is active voice because the technician is the subject and the subject is doing the action. Who will clean? Who will do the action? The technician only, और technician आपका subject है, और जब subject action करता है तब आपका active voice होता है. Okay, so ये active voice है. So now we have to change it into passive voice. So the subject is the technician and what will they clean? They clean the laboratory. So the laboratory will be our new subject because यहाँ पर ये आपका object है. The laboratory will be cleaned. बिकॉज आपका जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसकी पासिव फॉर्म होती है विल बी. द लेबोरेटरी विल बी क्लीन्ड बाय द टेक्नीशियन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स आर ओवर. जो प्रयोगशाला है वो टेक्नीशियंस के द्वारा साफ कर दी जाएगी जब उनके एक्सपेरिमेंट्स ओवर हो जाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज एन ऑनलाइन बुक स्टोर हैड बीन स्टार्टेड बाय शिवांश अ कपल ऑफ ईयर्स एगो. सो बाय इज गिवन, दैट मीन्स इट इज़ पासिव वॉइस. जो एक ऑनलाइन बुक स्टोर है वो किसके द्वारा किया गया? शिवांश के द्वारा स्टार्ट किया गया कुछ साल पहले, अ कपल ऑफ ईयर्स एगो. सो वी हैव टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस. हेयर द सब्जेक्ट इज एन ऑनलाइन बुक स्टोर एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज शिवांश. सो ऑटोमेटिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो शिवांश बन जाएगा. ओके, एंड हेयर हैड बीन दिया है, हमको क्या करना है? एक्टिव वॉइस बनाते समय केवल बीन हटा देना है. सो द सेंटेंस इज शिवांश हैड स्टार्टेड एन ऑनलाइन बुक स्टोर अ कपल ऑफ ईयर्स एगो. शिवांश ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया कुछ साल पहले. नेक्स्ट सेंटेंस इज अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अद्वै टू हिज ग्रैंड मदर यस्टरडे. एक पत्र जो है वो अद्वै के द्वारा लिखा जा रहा था उसकी दादी जी को कल. सो हेयर बाय इज गिवन, दैट मीन्स इट इज़ पासिव वॉइस ओनली एंड द सब्जेक्ट इज अ लेटर. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज अद्वै बिकॉज किसके द्वारा लिखा गया? अद्वै के द्वारा. सो आर न्यू सब्जेक्ट विल बी अद्वै ओनली. एंड वॉज बीइंग दिया है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस है आपका, तो हम केवल वॉज रखेंगे और बीइंग हटा देंगे बिकॉज हम पासिव से एक्टिव में चेंज कर रहे हैं. अद्वै वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज ग्रैंड मदर येस्टरडे. अद्वै जो है वो अपनी दादी जी को लेटर लिख रहा था कल. सो द सिक्स सेंटेंस इज सीमा इज स्टिचिंग द फैब्रिक. सीमा जो है वो फैब्रिक स्टिच कर रही है. सो इट इज़ एक्टिव वॉइस बिकॉज सीमा इज डूइंग द एक्शन, द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन
And what is the object? The object is fabric. So in when we will convert it into passive voice, the fabric will become the new subject and it is singular. So हमने is लगाया है. The fabric is being stitched by Seema. जो fabric है वो सीमा के द्वारा stitch किया जा रहा है. So these were the sentences that we have converted from active to passive voice according to continuous tense, and we have done some exercises also. I hope everything is understood to all of you. If still any confusion is there, so you can ask on the WhatsApp, that is between 11:30 a.m. to 12 p.m. Till that, keep learning. I'll meet you in the another video. Stay home, stay safe. Bye bye everyone.